كان من الشاكرين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. صلی من علی اللہ رب بیزنم حمزہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بیزنم غوث اعظم بمدی بیسر و سمع مدد قبلۂ دی مدد کعبۂ امام مدد قادری الناری غوث اعظم بیزنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بیزنم بغداد بلا افتاد کشتی ضعیفہ و شکستانات کشتی بحق خالع عثمان ہارونی مدد کلی آموی چشتی. آئیے کچھ عبدالعظیم سے بیشتر پوری کائنات کی مرکز خودت سیاہ لامکان آجش رضو جہاں مالک ہفت آسمان تطبعی دور زمان فخر آدم و بنی آدم اللہ کے محبوب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حبیب درود پاک پیش کرے اور بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، مزاج جس طرح سے لوگوں کا بنا ہوتا ہے تو اسی مزاج کے مطابق آدمی کام کرتا ہے. مزاج میں چینجنگ نہیں آتا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر میں پہلے آ جاؤں تو کہنے والے یہ کہتے ہیں آپ نہیں آتے اس لیے پبلک نہیں ہوتی. میں آپ کو لکھ کر کے دے دوں کہ اگر میں بعد نماز عشاء یہیں بیٹھا ہوں نہ جاؤں اور 10:30 بجے سے پہلے لوگ آ گئے تو آپ جو چاہو وہ مجھے سزا دے دیں. میں اس کی بات کی گارنٹی دے دوں آپ کو لکھ کر کے. لوگ اپنا کام پٹا کے کھا کے تب آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہ سوچے کوئی کہ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ ابھی امام صاحب نہیں آئے. نہیں، لوگ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ان کا ابھی ان کی ضرورت نہیں پوری ہوئی. جب ان کی ضرورت پوری ہوگی جب وہ آئیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسجدوں میں جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے وہاں کا یہی مزاج ہے. مگر پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں. جن مسجدوں میں دارالعلوم چلتا ہے آپ وہاں جا کے دیکھیں، اگر دارالعلوم کے طلبہ نہ ہوں تو گنے چنے 10 آدمی رہتے ہیں. پھر بھی یہاں لوگ آ جاتے ہیں. اور میں اگر پہلے آ بھی گیا تو یہ جو بچے نعت پڑھ لیتے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیتے ہیں، ان کا بند ہو گیا. ارے تو میں نہیں پڑھ پاتا، جو پڑھ پاتا ہے وہی پڑھ لے بھائی، ہے کہ نہیں؟ کوئی تو پڑھے. بہرحال آپ وقت پر آئیں اور ذکر شہداء کرب و بلا سنیں. اور میرا کیا ہے، کوئی رہے گا تو بھی راجدھانی چلے گی، کوئی نہیں رہے گا تو بھی چلے گی، ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے تو بھی نہیں ہے. ہمیں کیا ہے، ایک بار شروع کر دیا تو پھر دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں. شروع کر دیا تو کر دیا. ایک بار درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منقبت اہل بیت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بڑے علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، کس جگہ سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت.
کس جگہ سے ہو گیا مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، پھول سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانے اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانے اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہا، کٹ رہا ہے لہلہا تا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہا تا بوستان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ کیسی چل گئی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہا تا بوستان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت۔ وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری ہے بے وگانے اہل بیت، لو سلام آخری ہے بے وگانے اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ایک بار درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی مرتبہ، گزشتہ رات میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پہ مختصر سی گفتگو کی تھی۔ آج شان اہل بیت پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل مجدہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم فیضان اہل بیت کے صدقے میں آپ سبھی کا آنا
اور ہمارا ذکر اہل بیت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور تمام طرح کی تکالیف، تمام طرح کی صعوبتیں، تمام طرح کی مشکلوں کا سامنا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حضرات گرامی، سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو صحابہ نے سوچا کہ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے، نذر و نیاز پیش کیا جائے۔ صحابہ کرام یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد اس پیغام کو بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے آپس میں ایسا مشورہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک کی آیت پاک پہلے ہی لے کر کے نازل ہو چکے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے تم سے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے تم سے سونا چاندی نہیں چاہیے، مال و زر نہیں چاہیے۔ میں مکے میں آیا اور تمہارے درمیان میں نے تبلیغ کیا۔ تبلیغ اسلام کی وجہ سے مکے کے لوگ میری دشمن بنے، مکے کے لوگوں نے مجھے ستایا، طائف میں نے پتھر کھائے، شیخ ابی طالب میں 3 سال محصور رہا، وطن چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر مجھے مجبور کر دیا گیا۔ تمام تکلیفیں میں نے اٹھائی تبلیغ اسلام کے لیے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر قل لا اسألکم، مجھے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، علیہ اجرن، کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مگر الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کی محبت چاہیے، میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو، میرے اہل بیت سے تم پیار کرو، ان کا احترام کرو، تبلیغ اسلام پر یہی اجرت مجھے چاہیے۔ اور یہ حکم پروردگار تھا، یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ محبوب امت سے اپنے اہل بیت کے پیار کا مطالبہ کیجیے، امت سے اپنے قرابت داروں کی محبت کا مطالبہ کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جو اہل بیت ہیں، میرے جو قرابت دار ہیں، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، ان سے محبت کرو۔ حضرات گرامی، نبی اگر
امت کو دے تو بھی امت کا فائدہ ہے، اور نبی اگر امت سے کوئی چیز کا مطالبہ کرے تو بھی امت کا فائدہ ہے۔ یہاں نبی فرماتے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں محبت کرو؟ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس لیے محبت کرو کہ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو گے، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ میرے قرابت داروں سے محبت کرو گے، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ میرے گھر والوں سے پیار کرو گے، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی المرتبہ، جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نماز کو فرض کیا ہے اور نماز کی فرضیت کا بار بار اعلان کیا گیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، ان کی تعظیم، ان سے مودت، ان سے جو ہے اخوت و پیار کا بار بار اللہ نے اپنے محبوب کے زبان مقدس سے اعلان کروایا۔ جس طرح سے نماز امت پر فرض ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی محبت بھی امت پر فرض ہے۔ حضرات گرامی المرتبہ، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک مثال لے لیجیے، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس آدمی کو فاسق مولد کہا جائے گا، اس کی گواہی کو شریعت مردود قرار دے گی، لیکن کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اسے کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ نماز کا انکار نہیں کر دیتا ہے۔ اس وقت تک وہ مسلمان رہے گا، اس وقت تک وہ مومن رہے گا، چاہے کہ بے نمازی ہو مگر ایمان والا رہے گا۔ جو نمازی نہیں پڑھی ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے، یہ پروردگار عالم کے رحم و کرم پر ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی آل سے جو محبت نہیں کرے گا، نبی کی آل سے جو بغض و عداوت رکھے گا، نبی کی آل سے جو حسد رکھے گا، اہل بیت مصطفیٰ سے جو پیار نہیں کرے گا، جس کے دل میں نبی کے آل کا بغض ہوگا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیدا، جو میرے آپ کی محبت میں مر جائے گا، اللہ اسے مرنے کے بعد شہید کا درجہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے مرنے کے بعد شہادت کا درجہ دے گا۔ اور آگے حدیث میں نبی فرماتے ہیں، من مات حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، جو میرے آل کی محبت میں مر جائے گا، اس کے مومن ہونے کی گارنٹی میں محمد دیتا ہوں کہ وہ مومن ہو کر کے مرا ہے، وہ مسلمان ہو کر کے مرا ہے۔ اور آگے حدیث میں نبی ارشاد فرماتے ہیں، من مات حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات دخل الجنہ، نبی فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مر جائے، مرنے کے بعد اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ یا اہل بیت کی محبت میں مرنے والے کو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام دیا جا رہا ہے۔ اور آگے نبی فرماتے ہیں، من مات حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات ملک الموت، ملک الموت مزارن، نبی فرماتے ہیں کہ جو میرے آل کی محبت میں مر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر کو ملک الموت کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا۔ فرشتے اس کے قبر کی زیارت کے لیے نازل ہوں گے، فرشتے اس کے قبر کی زیارت کریں گے۔ یا آل رسول سے محبت کا نتیجہ ہے، یا آل رسول سے محبت کا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہو کر کے مرے گا۔ من مات حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات اہل السنت والجماع، نبی فرماتے جو میری آل کی محبت میں مر جائے گا، وہ اہل سنت والجماعت پر اس کا خاتمہ
खात्मा होगा, अहले सुन्नत वल जमात पर उसका इंतकाल होगा, अहले सुन्नत वल जमात पर वो दुनिया से उठ करके जाएगा। इस हदीस के मुताबिक पता ये चला कि जो अहले सुन्नत वल जमात है वही मुहिब्बे अहले बैत है, और जो मुहिब्बे अहले बैत है वही अहले सुन्नत वल जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम खारजी हैं, ना हम राफसी हैं, ना हम नासिबी हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम अहले बैत मुस्तफ़ा का प्यार अपने सीने में लेकर के तब दुनिया से जाएंगे, ताकि नबी के फरमान के मुताबिक हम जन्नती हो जाए, नबी के फरमान के मुताबिक फरिश्ते हमारी कब्रों की ज़ियारत करें, नबी के फरमान के मुताबिक अल्लाह हमें शहादत का दर्जा अता फरमा दे। हज़रात गिरामुल मर्तबत शहादत का दर्जा हासिल करने के लिए जान देनी पड़ती है, गर्दन कटानी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है, लेकिन बाहर पैगंबर की इतरत, बाहर आले आबा कि तुम्हारी मोहब्बत में जो दुनिया से चला जाए बगैर गर्दन कटाए अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता कर देता है, बगैर खून बहाए अल्लाह उसे शहादत की मौत अता कर देता है, शहादत का मकाम अता कर देता है। या आले आबा के मोहब्बत की बरकतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जो उनकी मोहब्बत में मरता है परवरदिगार आलम उसे जन्नत अता फरमाता है, उसे शहीद का दर्जा अता फरमाता है। और यही तक नहीं हज़रात गिरामी, इस आयत को मैंने तिलावत किया है, इस आयत पे आप गौर करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हज़रात गिरामी मर्तबत इस आयत पाक में अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत से कहो कि उम्मत आपके क़राबतदारों से मवद्दत कायम करे, मवद्दत करे आपके क़राबतदारों से, आपके घर वालों से, आपके अहले बैत से उम्मत जो है वो मवद्दत करे। हज़रात मोहब्बत में और मवद्दत में बड़ा फ़र्क है, मवद्दत अलग चीज़ है और मोहब्बत अलग चीज़ है, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप कहेंगे कैसे फ़र्क है, तो मोहब्बत और मवद्दत के फ़र्क को समझिए, अहले बैत की अज़मत व शान आपके समझ में आएगी। मोहब्बत जो चीज़ है, अगर कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है, मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों की आपस में अनबन हो जाए, दोनों की आपस में ना बने और दोनों अपने अपने रास्ते पर हो जाए, दोनों जुदा हो जाए, अलग हो जाए। अब वो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, अगर दोनों अलग अलग हो गए, अब एक दूसरे के बगैर रह रहे हैं, एक दूसरे के बगैर तकलीफ नहीं है किसी को, इसलिए कि वो मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजर रही है। जबकि बारहा कहा करते थे यार दोस्त तेरे बगैर जिंदगी अधूरी होगी, तेरे बगैर जिंदगी पूरी नहीं होगी, लेकिन अब दोस्त चला गया है, अब दोस्त की जिंदगी गुजर रही है, दोस्त की जिंदगी गुजर रही है। मोहब्बत थी, जब तक दिल में थी तब तक थी, दोस्त चला गया तो मोहब्बत खत्म हो गई। इसी तरह से मिसाल मैं आपको और आगे दे करके समझाना चाहूँगा। हज़रात गिरामी मर्तबत एक आदमी का रिश्ता होता है और रिश्ता होने के बाद बीवी घर आती है, आदमी उससे बेलौस मोहब्बत का इजहार करता है, बेपनाह मोहब्बतें उस पर लुटाता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी का क्या होगा, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा कौन सहारा बनेगा। आदमी बीवी से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है, बोलो करता है कि नहीं करता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि तलाक की नौबत आ जाए। अब जब तलाक की नौबत आ जाती है, वही आदमी जो कहता था मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता हूँ, वही आदमी जो कहता था मैं तुझ पर बहुत प्यार लुटाता हूँ, वही आदमी जो इश्क के दम भरता था, वही आदमी जो मोहब्बत का नारा देता था, अब वही आदमी कहता मैं तुझे रखना नहीं चाहता हूँ, वही जो कहता था तेरे बगैर नहीं रह सकता हूँ, अब कहता है मैं तुझे नहीं रखना चाहता हूँ। बीवी भी कहती है कि मैं तो तेरे पास नहीं रहना चाहती हूँ। जबकि ये दोनों पहले एक दूसरे से कहा करते थे हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, मगर आज इस मोड़ पर आकर के खड़े हैं कि शौहर कहता है मैं तुझे रखना नहीं चाहता हूँ और बीवी कहती है मैं तेरे पास रहना नहीं चाहती हूँ। वो मोहब्बत के दावे कहाँ चले गए, अब मोहब्बत खत्म हो चुकी है, जब तक थी तब तक थी। अब शौहर तलाक देता है, बीवी चली जाती है, शौहर उसके बगैर रहता है, बीवी उसके बगैर रहती है, एक दूसरे के बगैर कोई
दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हजरत गिरामी मर्तबत ये तो मोहब्बत की मिसाल थी। इसी तरह अगर मैं मोहब्बत की मिसालें पेश करूं तो बहुत सारी मिसालें मेरे जहन में हैं, वक्त काफी गुजर जाएगा। मैं समझता हूं कि मोहब्बत के बारे में इन दो मिसालों से आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से कि मोहब्बत किसे कहते हैं। अब आइए मवद्दत की तरफ चलते हैं कि मवद्दत किसे कहते हैं। मोहब्बत तो आपने समझ लिया कि मोहब्बत जब तक है तब तक है, उसके बाद मोहब्बत खत्म तो आदमी भूल गया। लेकिन मवद्दत किसे कहते हैं, मवद्दत को समझने के लिए मैं दुनियावी एक मिसाल दे करके आगे बात करना चाहूंगा। हजरत गिरामी मर्तबत पानी और पानी में रहती है मछली, क्या आप सब जानते हैं कि पानी में मछली रहती है और अगर पानी से मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो मछली जिंदा नहीं रह सकती है, मर जाएगी पानी के बगैर। इसलिए कि पानी मछली की जिंदगी है। पानी से मछली मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करती है कि बगैर पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती है, इसका नाम मवद्दत है। तो बगैर अहले बैत के मवद्दत के तुम्हारा ईमान सलामत नहीं रह सकता है। जब तक अहले बैत की मवद्दत नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारा ईमान सलामत नहीं रहेगा, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं कहलाओगे, उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे। अगर चाहते हो कि ईमान वाले हो जाओ तो अहले बैत की मवद्दत दिल में पैदा करो, अहले बैत का प्यार दिल में पैदा करो। हजरत गिरामी मर्तबत मवद्दत और मोहब्बत तो आप समझ गए होंगे कि मवद्दत किसे कहते हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं। अहले बैत से मोहब्बत से बढ़ करके मवद्दत करना है कि बगैर अहले बैत के इश्क के एक मिनट में हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, हमारा ईमान जिंदा नहीं रह सकता है। अगर अहले बैत की मवद्दत दिल से निकल गई तो हमारे ईमान का खातिमा हो जाएगा। इसलिए अहले बैत का प्यार अपने सीनों में पैदा करो, अहले बैत की मोहब्बत अपने सीनों में पैदा करो, अहले बैत से मवद्दत करो। मवद्दत कि बगैर अहले बैत के प्यार के, बगैर अहले बैत के इश्क के आपका ईमान सलामत नहीं रह सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने ये आपको बताया कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं उन्हें अल्लाह रसूल की बारगाह से इनाम क्या मिलता है, उन्हें अल्लाह रसूल की बारगाह से क्या नवाजिशें मिलती है। अब सुनिए आगे कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ करते हैं, जो अहले बैत से अदावत रखते हैं, जो अहले बैत से हसद रखते हैं, उन्हें भी इनाम दिया जाता है। उन्हें खाली नहीं छोड़ा जाता है, उन्हें मायूस नहीं किया जाता है। उन्हें इनाम क्या मिलता है? आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन माता बुग़्ज़ आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता काफिरन, जो मेरे आल यानी मोहम्मद के आल के बुग़्ज़ में मर जाएगा वो काफिर होकर के मरेगा, वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। मुसलमान होने के लिए अहले बैत से मोहब्बत करना यह जरूरी है। और नबी फरमाते हैं जो मेरे आल से बुग़्ज़ रखे और उसी में मौत आ जाए, उसी बुग़्ज़ में मर जाए तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा, अल्लाह उसे जहन्नम में ढकेल देगा। और दूसरी रिवायत ये है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, अहले बैत से प्यार करेगा, वो अगर गुनहगार भी है तो जब तक गुनाहों से तौबा नहीं कर लेता है उस वक्त तक उसे मौत नहीं आ सकती है, उस वक्त तक वो मरेगा नहीं, उस वक्त तक वो दुनिया से जाएगा नहीं। अब कोई ये कह सकता है मौलाना ये कैसे हो सकता है, जब गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो तौबा न कर ले। अरे जब अब्दुल कादिर का मकाम ये है तो सोचो जरा हुसैन आज़म का मकाम क्या होगा, इमाम हसन का मकाम क्या होगा, हजरत मौला मुश्किल कुशा का मकाम क्या होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा का मकाम क्या होगा। हजरत गिरामी मर्तबत आले रसूल से जो बुग़्ज़ रखेगा, आले रसूल से जो अदावत रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे ईमान को सल्ब कर देगा, ईमान को अल्लाह उससे जुदा कर देगा। ईमान होने के लिए आले रसूल की मोहब्बत जरूरी है, आले रसूल से मवद्दत जरूरी है। अगर आले रसूल की मोहब्बत ना रही तो ईमान सलामत नहीं रहेगा। इसलिए अपने सीनों में आले रसूल का प्यार और आले रसूल
की मोहब्बत मोजिज़न करो। आले रसूल से प्यार और मोहब्बत आपके सीनों में सबसे बढ़ के होना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ अहले बैत का जिक्र किया है, सरकार ने ये नहीं फरमाया है कि मेरी अहले बैत ना। हजरात एक बात मैं अर्ज करता चलूँ, सहाबा अलग है, नबी अलग है, अहले बैत अलग है, नबी अलग है, फर्क है। लेकिन नबी ने जहाँ अहले बैत का जिक्र किया है वहाँ ये फरमाया है कि हम अहले बैत, यानी नबी ने अहले बैत में अपने आप को शामिल किया है। हम अहले बैत, सरकार फरमाते हम अहले बैत से जो दुश्मनी करेगा वो अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है। हम अहले बैत से जो बुग़्ज़ो अदावत रखेगा वो अल्लाह से बुग़्ज़ो अदावत रख रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने थे तो आपने इरशाद फरमाया था, लोगों नबी की कराबत और नबी के अहले बैत मुझको मेरे कराबत और अहले बैत से ज्यादा अजीज है, मुझको मेरे कराबत और अहले बैत से ज्यादा प्यारे हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर अहले बैत से लोगों को डराया है कि मेरे अहले बैत के ताल्लुक से होशियार रहना, मेरे अहले बैत के ताल्लुक से चौकन्ने रहना, मेरे अहले बैत का प्यार तुम्हारे सीनों में होना चाहिए, मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए। हज़रात गिरामी, अगर अहले बैत का प्यार नहीं रहा, अहले बैत की मोहब्बत नहीं रही तो याद रखिए आपका ईमान सलामत नहीं रहेगा, आपका ईमान पर खात्मा नहीं होगा, बल्कि नबी ने फरमाया कुफ्र पर मरेगा। तो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, तो अहले बैत से अदावत रखेगा, तो अहले बैत से हसद रखेगा, उसका खात्मा खैर नहीं होगा बल्कि उसका खात्मा शर हो जाएगा, यानी बुरी मौत मरेगा, काफिर हो करके मरेगा। और दूसरी हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे आल के बुग़्ज़ में मरेगा जन्नती तो छोड़ दो, उसको जन्नत की खुशबू तक मैसर नहीं होगी, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं आएगी। मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा उदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझको नाराज किया, जिसने फातिमा को जो है तकलीफ पहुंचाई उसने मुझको तकलीफ पहुंचाई। अब जो ये चाहते हैं कि नबी राजी हो जाए तो नबी की रज़ा अहले बैत की रज़ा में है, नबी की रज़ा आले मुस्तफ़ा की रज़ा में है, नबी की रज़ा आले उम्मा की रज़ा में है और खुदा की रज़ा मुस्तफ़ा की रज़ा में है। हज़रात ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खुदाए वाहदहू कुद्दूस ने अहले बैत नबूवत को बड़ा मकाम अता फरमाया है, बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोगों तरक्तुम फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे बीच में मैं दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी इतरत है, वही इतरत ही मेरी इतरत है, यानी मेरी अहले बैत है। इन दोनों को मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूँ और इन दोनों के दामन से जो जुड़े होंगे वो ईमान से कभी खाली नहीं होंगे, इन दोनों के दामन से जो जुड़े होंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे, इन दोनों के दामन से जो लगे होंगे वो कभी राह से भटक नहीं सकते हैं। तभी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मेरी अहले बैत जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है, इसमें जो सवार हो जाएगा फनजा, वो निजात पा जाएगा, इसमें जो सवार हो जाएगा वो पार हो जाएगा और जो इसमें सवार नहीं होगा वो निजात नहीं पाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए फर्ज करार दे दिया है कि मेरे आज से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है और दूसरा कुरान है। इन दोनों के दामन से जुड़े रहना, इन दोनों का दामन हाथ से छूटने ना पाए। हज़रात गिरामी मर्तबत यहाँ एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मेरी अहले बैत है और ये कुरान है, दोनों से जुड़े रहना, एक का भी दामन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगर एक का भी दामन हाथ से छूट जाता है तो याद रखो ईमान से हाथ धो बैठोगे, रास्ते से भटक जाओगे और रास्ते से गुमराह हो जाओगे। नबी ने ये भी नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान सहाबा छोड़ के जा रहा हूँ, ये 1.25 लाख सहाबा
सहाबा है, कमोबेश 1.25 लाख मेरे सहाबा है, इनके दामन से जुड़े रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का जिक्र इसलिए नहीं किया, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई एतराज करे तो आप उसका जवाब दो। सहाबा का जिक्र इसलिए नबी ने नहीं किया कि सहाबा जो है वो निगाहे नबूवत से बनाए जाते हैं और अहले बैत जो है वो खूने नबूवत से बनाए जाते हैं। नबी जानते थे कि जब तक मैं रूए जमीन पर हयात ज़ाहिरी में मौजूद हूँ उस वक्त तक तो सहाबा बनेंगे, मगर मैं जब चला जाऊंगा तो सहाबा का दौर खत्म हो जाएगा। अब सहाबा कहाँ से बनेंगे? सहाबी होने के लिए नबी के निगाह की जरूरत है, नबी के नजर इनायत की जरूरत है। जिस पर नबी की नजर पड़ जाए वो सहाबी हो जाता है, और जो नबी को हालत ईमान में मोहब्बत से देख ले वो सहाबी कहलाता है। सहाबी उस वक्त तक बनेंगे जब तक नबी ज़ाहिरी हयात में मौजूद है। सरकार जानते थे कि मेरे जाने के बाद 10-20 साल के बाद 50-100 साल के बाद सहाबा का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार जानते थे कि मेरी जो इतरत है, मेरी जो आल है, मेरी जो अहले बैत है, ये क़यामत तक खत्म होने वाले नहीं है। इनका सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। कोई कितना भी कोशिश करके खत्म कर लेंगे मगर ये खत्म नहीं होंगे। पूरा कुम्बा लुटा दिया करबला के मैदान में। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन तनहा बचे थे और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी दुनिया में नबी के खून को फैला दिया। पूरी दुनिया में इतने पैगंबर फैली हुई है। हज़रात गिरामी मर्तबा सरकार जानते थे कि मेरी इतरत कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए नबी ने कहा था कि मेरी इतरत और कुरान के दामन को पकड़ करके रखना। पता ये चला कि जहाँ अहले बैत होंगे वहीं कुरान होगा और जहाँ कुरान होगा वहीं अहले बैत होंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है। कैसे नहीं जुदा है? कुरान को पढ़ो और कुरान की अमली तफसीर देखना है तो अहले बैत की जिंदगी में देखो, अहले बैत के अमल किरदार से देखो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक आदमी आया और पूछता है, हुजूर जो कुरान की आयत है अल्लाह ने इरशाद फरमाया है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और गिरोह में ना बटो, इसका मतलब क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं नहनु हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी जो है वो हम ही है। आसमान से कोई रस्सी नहीं लटक रही है तो तुम पकड़ के लटक जाओगे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं नहनु हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी हम ही है, हमारे दामन को मजबूती से पकड़ करके रखो तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान और अहले बैत दोनों को नबी ने छोड़ा है। हजरात हम अहले सुन्नत वल जमात है, ना हम तो खाली कुरान वाले हैं और ना खाली अहले बैत वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में इतरत पैगंबर का दामन है। वो लोग जो खाली कुरान पे अमल करते हैं, इतरत को जिन्होंने छोड़ दिया और खाली कुरान को माना, वो इमाम मौला अली के जमाने में खारजी कहलाए और इस जमाने में वहाबी कहलाते हैं। उस जमाने में खारजी थे, इस जमाने में देवबंदी वहाबी कहलाते हैं। और जिन्होंने खाली जो है कुरान को छोड़ दिया, खाली अहले बैत को पकड़ा, वो उस जमाने से लेकर के इस जमाने तक राफजी कहलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम राफजी है, ना हम खारजी है, ना हम नासिबी है, हम अहले सुन्नत है। एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में दामन इतरत रसूल है। कुरान को पढ़ते हैं और तफसीर जो है वो अहले बैत के जिंदगी से लेते हैं। कुरान को पढ़ते हैं और माना अहले बैत के जिंदगी से लेते हैं। हमने दोनों के दामन को पकड़ा है, तभी तो नबी ने फरमाया था अहले बैत की मोहब्बत में जो मरेगा वो अहले सुन्नत व जमात पर मरेगा। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में अहले बैत की मवद्दत भी है और कुरान की अजमत भी है। हमने दोनों को पकड़ रखा है। हज़रात गिरामी मर्तबा हमने पकड़ तो रखा है दोनों को, ये कह तो रहा हूँ मैं, लेकिन कितना पकड़ रखा है ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कितना पकड़ा है ये खुद आप कह सकते हैं। मैंने तो कह दिया चिल्ला करके कि हमने दोनों के दामन को पकड़ रखा है, लेकिन कितना पकड़ा है ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हमने इतना पकड़ा है कि घर में किसी का विशाल हो जाए
इंतकाल हो जाए तो कुरान शरीफ की पेटी लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आए? सवाब के लिए लेकर के आया हूँ। बड़े खुशी खुशी लाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ला करके मस्जिद में रख देते हैं और वो दिल में ये कहते हैं मस्जिद अब ये कुरान तेरे हवाले है, अब ये कुरान मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया है, अब इससे मेरा कोई लेना देना है। अब मैंने यहाँ रखा और मैं चला। और उसके बाद क्या होता है? वो 1 साल 2 साल 3 साल तक रखा रहता है, 4 साल तक रखा रहता है, कोई उसमें हाथ तक नहीं लगाता है और उसके बाद उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। ये हमारे मोहब्बत का आलम है। और आप कहेंगे इमाम साहब कैसी बात करते हैं? ऊपर चलिए, मैंने गोली भर भर के पारा रखवाया है जो एकदम चमकते पारे हैं, जो एकदम नए ताजे हैं। और हाल ये हुआ कि बेटियां सड़ गई और पारे से ही सलामत है। बेटियों को भंगार में दे दिया गया और पारों को गोली में भरवा के रखवा दिया गया। अगर कुरान के दामन को तुमने पकड़ा होता तो वो पारे आज गोली में नजर नहीं आते। अगर कुरान से तुम्हें मोहब्बत होती तो वो पारे आज गोली में नजर नहीं आते, बल्कि वो पारे यहाँ रखे होते और हर रोज हर आदमी एक पारा नहीं तो 1 रुकू जरूर तिलावत करता और उसके बाद अपने घर जाता। हजराते गिरामी मर्तबा, हमने कुरान मुकद्दस को सिर्फ कहने के लिए पकड़ा है, कहने के लिए नहीं, बल्कि कुरान को मजबूती से ऐसे पकड़ना है जिसकी मजलिस में आप बैठे हैं। वो हुसैन तो नेज़े पे कुरान पढ़ रहे थे, नेज़े पे कुरान सुना रहे थे। आपको नेज़े पे तो पढ़ने के लिए किसी ने नहीं कहा है, आपको तलवार पे पढ़ने के लिए तो किसी ने नहीं कहा है। आप तो एसी में बैठ के पढ़ते हैं, आप तो पंखे के नीचे बैठ करके पढ़ते हैं। उसके बावजूद ये हाल है। वो नेज़े पे कुरान सुना रहे थे। इस ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह 9वीं शब में जरूर अर्ज करूंगा जब शहादत की बात आएगी। हज़रात गिरामी मर्तबा, कुरान और अहले बैत दोनों को मजबूती से पकड़ना है। दोनों में से एक का दामन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगर हाथ से किसी एक का भी दामन छूट जाता है तो याद रखिए ईमान का खात्मा हो जाएगा। यह अहले बैत हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सरकार के पास एक चादर है, चादर नबूवत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने चादर को ऐसे खोल दिया और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं। हजरत मौला अली को, हजरत फातिमा को, इमाम हसन और इमाम हुसैन को हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों को उस चादर में छुपा लिया और उसके बाद दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलल बैत, ऐ परवरदिगार आलम यही मेरे अहले बैत है, मौला यही मेरे घर वाले हैं, यही मेरे कराबतदार है, यही मेरे अजीज है। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह क्या चादर में मैं भी आ जाऊं? नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा तुम वैसे फजीलत वाली हो, तुम्हें तो अल्लाह ने वैसे फजीलत अता किया है। नबी ने चादर में अहले बैत को छुपाया और छुपाने के बाद दुनिया को ये बता दिया, ऐ लोगों जैसे ये मेरे चादर में छुपे हैं, अगर इनसे मोहब्बत करोगे तो कल कयामत के दिन मेरी कमली में तुम भी छुपा लिए जाओगे, कल कयामत के दिन मेरे चादर नबूवत में तुम भी छुपा लिए जाओगे, मेरे चादर तकी नबूवत का साया तुम्हें भी नसीब हो जाएगा। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तरे नेक अख्तर सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीरत तैयबा पर कल मैंने मुख्तसर अर्ज किया था। हजरत मौलाए कायनात के घर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा गई। हजरत गिरामुल मरतबत नबी की बेटी है, कायनात की बेटी है, जाने आलम की बेटी है, अपने हाथों से चक्की पीसती है, अपने हाथों से चक्की चलाती है, अपने हाथों से पानी निकालती है, अपने हाथों से घर का सारा काम करती है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को नबी ने भेजा, कहा अबू ज़र ग़िफ़ारी जाओ अली को बुला लाओ। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि चक्की चल रही है मगर चलाने वाला कोई नहीं है, अपने आप चक्की चल रही है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वहां से वापस आए और आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह मैंने अली के घर देखा चक्की चल रही थी और कोई चलाने वाला नहीं था। नबी ने फरमाया अली नबी ने फरमाया अबू ज़र जब फातिमा थक जाती है चलाते चलाते तो फरिश्ते आकर के चलाने लगते हैं, फरिश्ते आकर के चक्की चलाते हैं। अरे जिनके घर फरिश्ते आकर के चक्की चलाते रहे हो हजरात, उनके ज़ुहद व तक़वा को आप देखें। जनाब सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना भी पकाती है और एक वक्त की नमाज जनाब सैयदा ने नहीं छोड़ा। कभी जनाब सैयदा की एक भी वक्त की नमाज
नमाज कज़ा हुई ही नहीं है, सारी नमाजें हजरत सैयदा तैयबा की अदा ही अदा है, कभी कज़ा नहीं हुई। हजरत ग्रामीण मर्तबा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी सैयदा खातून जन्नत को मौलाए कायनात के घर भेज दिया। आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम एक मर्तबा हजरत फातिमा को लेने के लिए हजरत अली के घर गए और जब घर पहुंचे सलाम पेश किया। हजरत फातिमा अर्ज करती है, बाबा कैसे तशरीफ लाना हुआ? हजरत आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मैं तुझे लेने आया था। हजरत फातिमा अर्ज करती है, बाबा मगर अली तो घर पे नहीं है। नबी ने फरमाया, कहाँ है? हजरत फातिमा अर्ज करती, बाहर गए हैं। आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम बैठ गए और अली का आने का इंतजार नबी कर रहे हैं। जब अली आएगा तब लेकर के जाऊंगा। हजरात मालिक कौनैन है, नबी जो चाहे वो करे, किसी की हुकूमत नबी पर नहीं चल सकती है, लेकिन नबी ने उम्मत को ये मिजाज दिया है, लोगों जब मालिक कौनैन बगैर दामाद के इजाजत के बेटी को घर से नहीं ले जा रहा है तो तुम कैसे ले जा सकते हो? इसलिए जब बेटियों को लेने जाया करो तो पहले दामाद से इजाजत ले लिया करो, उसके बाद लेकर के आया करो। और माँ और बहनों से भी मैं अर्ज करना चाहूंगा, हजरत फातिमा ने अर्ज किया था, बाबा जब तक अली इजाजत नहीं देंगे मैं जा नहीं सकती हूँ। अल्लाह अकबर। आप सोचे जरा, माँ और बहनों तुम भी गौर से सुनो, आज अगर माँ बाप का फोन आ जाता है तो शौहर के इजाजत की जरूरत क्या है? हमें जाना है तो जाना है। ज्यादातर घर इसी वजह से बिगड़ रहे हैं कि जाना है तो जाना है, शौहर के इजाजत की जरूरत क्या है? शौहर के बगैर इजाजत के तुम घर से नहीं जा सकती हो, और अगर चली गई तो जब तक शौहर राजी नहीं होगा अल्लाह उसके रसूल और फरिश्तों की लानतें तुम पर बरसती रहेंगी। इसलिए लानतों से बचना है तो शौहर के इजाजत के बगैर तुम घर से नहीं जा सकती हो। हजरत सैयदा ने नबी से अर्ज किया, नबी या रसूल अल्लाह जब तक अली नहीं आ जाते मैं नहीं जा सकती हूँ। सरकार मुस्कुराए और बैठ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। जनाबे हजरत मौलाए कायनात जैसे घर में दाखिल हुए, फरमाते फातिमा, हजरत सैयदा अर्ज करती है, जी आका। कहा नबी की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं क्या? हजरत फातिमा अर्ज करती है, आने वाले नहीं है, बल्कि पैगंबर तो पहले से आ चुके हैं। सरकार तो आपके इंतजार में बैठे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अली मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम इसकी इजाजत देते हो? हजरत मौलाए कायनात ने कदम पकड़ लिया और अर्ज करते हैं, बंदा नवाज आका मेरी क्या मजाल है कि मैं इजाजत दूं या ना दूं? या रसूल अल्लाह आप मालिको मुख्तार है, आप जब चाहे जब ले जाएं, अली के इजाजत की जरूरत नहीं है। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप ले जाएं। सरकार चाहते तो लेकर के बगैर पूछे चले जाते, लेकिन नबी ने उम्मत को मिजाज दिया, उम्मत को सबक दिया। और हजरत ग्रामीण मर्तबत यही तक नहीं बल्कि सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माले गनीमत आया था, अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं काम करते करते। नबी के बेटी के हाथ में छाले पड़ जाते थे काम करते करते, और चादर ततहीर में कई पेवंद हुआ करते थे। नबी की बारगाह में बेटी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह वो मुझे भी गुलाम अता कर दिए जाए, मुझे भी नौकर अता कर दिए जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तुमसे ज्यादा इन गुलामों और इन नौकरों के हकदार हुए 3 बच्चे हैं जिनके बाप जंगे बद्र और उहद में शहीद हो चुके हैं, वो तुमसे ज्यादा हकदार है। और फातिमा क्या इस बात पर तुम राजी नहीं हो कि मैं तुम्हें एक तस्बीह बता देता हूँ जिसे हर नमाज के बाद पढ़ा करना? तो आप सब भी पढ़ते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इस तस्बीह को सब पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया कि 33 मरतबा इसे पढ़ा करो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाखुशी अपने घर तशरीफ ले गई। इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा जाता है। हजरत ग्रामीण मरतबत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब काम करती थी तो हाथों में छाले पड़ जाते थे, मगर शौहर से कभी शिकायत नहीं किया कि मेरे हाथों में छाले पड़ जा रहे हैं। ये वो फातिमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जब वक्त करीब आया था, मैं उधर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, बस जितना नस करता चलो। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल
विसाल का वक्त करीब आया था और नबी ने कान में फरमाया था, फातिमा अब मैं जाने वाला हूँ और अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाता है, सबसे ज्यादा जिसके सीने पे गम गुजरती है वो सैयदा खातून जन्नत है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम नाज से इस जमीन को मुशर्रफ फरमाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयदा फातिमा ज़हरा ज़ारो कतार रो रही है। हज़रत मौलाए कायनात समझाते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा समझाती है, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आधी रात का अरसा गुजर गया। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैंने सोचा कि देखो जरा फातिमा क्या कर रही है। तो करीब गए तो देखा कि सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जमीन पे बेहोश पड़ी है। जनाब मौलाए कायनात ने पानी लिया और पानी का छींटा मारा, जैसे पानी का छींटा मौला अली मारते हैं हजरत फातिमा ज़हरा की आँख खुल जाती है। हजरत फातिमा से नबी अली फरमाते हैं, फातिमा क्या हाल है। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया मौलाए कायनात से कि आप मुझे मेरे बाबा के मज़ार पे लेकर के चले, मेरे बाबा के कब्र अतहर पे लेकर के चले। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदा तैयबा को चादर तत्हीर देते हैं। ये वो चादर तत्हीर है जिसमें कई एक पेवंद लगे हुए हैं और कई एक जगह से चादर तत्हीर फटी हुई है, मगर फिर भी नबी की बेटी ने ऐसा पर्दा किया है कि रात में महरों माँ भी नबी के बेटी को नहीं देख सकते। सैयदा ने हजरत ज़ैनब को लिया, हजरत इमाम हसनैन करीमैन को लिया, मौलाए कायनात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हजरत सैयदा तैयबा पहुँचती है और सरकार के मज़ार मुक़द्दस से चिमट जाती है और रो रो करके अर्ज करती है, बाबा आप हमें छोड़ करके चले गए। हजरत सैयदा फातिमा जब वहाँ से वापस तशरीफ लाती है, हजरत सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, मम्मी जान आप नाना जान के कब्र पर इतना रोई है, आखिर क्यों रोई है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझाती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक के बाद 6 महीना खातून जन्नत दुनिया में रही। 6 महीने के बाद आपका विसाल होता है और जब विसाल का वक्त करीब आता है, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा घर में है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर से तशरीफ लाते हैं और जब घर में पहुंचे तो क्या देखते हैं, पानी गर्म हो रहा है। फातिमा ज़हरा आटा गूंद रही है और शहजादे बैठे हुए हैं। सैयदा ने सारे काम कर लिया है, सारी तैयारियां कर ली है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, आज खिलाफे मामूल ये तैयारियां हो रही है, खिलाफे मामूल आटा गूंधा जा रहा है, खिलाफे मामूल पानी गर्म किया जा रहा है। हजरत सैयदा के करीब जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, फातिमा क्या बात है, आज खिलाफे मामूल सारा काम हो रहा है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है, मेरे आका मेरे सरताज, अब मेरे और आपके जुदा होने का वक्त करीब आ चुका है। अब मैं आपके साथ ज्यादा नहीं रहने वाली हूँ, अब मेरे जाने का आखिरी वक्त आ गया है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, ये तुम्हें कैसे पता चला। हजरत फातिमा कहती हैं, आज रात को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, बाबा क्या तलाश कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, फातिमा मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ, हम तुझे लेने आए हैं, हम तुझे लेने आए हैं। मुझे इस बात से अंदाजा होता है कि अब मैं बहुत जल्द जो है रुखसत होने वाली हूँ, इसलिए मैंने हजरत अली फरमाते हैं, तो आटा क्यों गूंद रही हो। हजरत सैयदा फराज करती है, आटा मैंने इसलिए गूंधा है कि अपने हाथों से अपने शहजादों को खाना खिला दूं, मेरे जाने के बाद न जाने में खाना मिलता है या नहीं मिलता है। हजरत अली फरमाते, पानी को गर्म किया है। कहती है, पानी इसलिए गर्म किया है कि इनके जुल्फों को संवार दूं, मेरे जाने के बाद कौन संवारेगा इनकी जुल्फों को। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत एकदम अलील है, नासाज है। हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बिस्तर पे लेटती है, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करती है कि हसनैन करीमैन को, दोनों शहजादों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे भेज दे और आप थोड़ी देर मेरे सर के पास बैठ जाए। हजरत अली ने हसनैन करीमैन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर भेजा। हजरत इमाम हसनैन करीमैन जब रोज़े रसूल के करीब
پہنچتے ہیں، ایک آواز آتی ہے، دیکھو فاطمہ کی یتیم آ رہے ہیں، دیکھو فاطمہ کے دونوں یتیم آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھے، تو آواز دے رہے تھے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ فاطمہ کے دونوں شہزادے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ فاطمہ کے یتیم آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب پہنچتے ہیں، سرکار کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا حسنین کریمین سے جاؤ اور اپنے ماں کے پاس جا کر کے تھوڑا وقت گزار لو، اب تمہاری ماں تم سے جدا ہونے والی ہے۔ حسنین کریمین گھر آئے اور آنے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت حسنین کریمین عرض کرتے ہیں بابا ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ اماں دنیا سے جانے والی ہے، اماں کا وصال ہونے والا ہے، ابھی نانا کریم کا غم بھرا نہیں تھا کہ والدہ ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں یہ تم کو کس نے بتایا؟ کہتے ہم نے نانا رسول کے قبر سے سنا ہے، ابراہیم خلیل اللہ آواز دے رہے تھے کہ فاطمہ کے دونوں یتیم آ گئے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ آواز دے رہے تھے، موسیٰ کلیم اللہ آواز دے رہے تھے، اور نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جاؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو، اب تمہاری ماں تم سے جدا ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں حضرت سیدہ زینب کو حضرت فاطمہ الزہرا نے بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، امام حسنین کریمین ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت سیدہ زینب کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، ارشاد فرماتی ہے زینب سنو میں کرب و بلا کا وہ منظر دیکھ رہی ہوں جب میرا بیٹا حسین بھوکا پیاسا رہے گا، زینب سنو میرے بچوں کے حلق میں جب تیر اور تلوار کی بارش کر دی جائے گی، زینب اس وقت حسین کو تنہا مت چھوڑنا، زینب اس وقت حسین کو بے سہارا مت چھوڑنا، اور زینب اس وقت تم صبر و رضا کا کوہ ہمالیہ بن کر کے یزیدیوں کے سامنے کھڑی ہو جانا۔ زینب میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس کرب و بلا میں تمہارے دونوں شہزادے اور محمد بھی قتل کیے جائیں گے، میں زینب کربلا کا پورا منظر دیکھ رہی ہوں، زینب میرے شہزادوں کا بہت خیال رکھنا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حسنین کریمین یہ وہ حسنین کریمین ہیں کہ جن کو مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، حضرت امام حسن اور حسین کے حلق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے زبان کو چومتے تھے اور امام حسین کے حلق کو چومتے تھے۔ سیدہ نے پوچھا تھا بابا دونوں بچوں میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حسین کے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہے؟ ارے ان کے منہ سے کہاں بدبو آئے گی پیارے، یہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا اور حسین کے حلق پہ تلوار چلائی جائے گی، اس لیے میں حسن کے حلقوں حسن کے زبان کو چومتا ہوں اور حسین کے حلق کو چومتا ہوں۔ حضرات گرامی مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے حضرت اسماء بنت امیس تھی، حضرت اسماء بنت امیس ان کی خدمت کر رہی تھی، اور یہ بات ساری کتابوں میں موجود ہے، چاہے سنیوں کی ہو چاہے شیعوں کی ہو۔ اور اسماء بنت امیس کون ہے؟ جوزہ ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے اسماء بنت امیس جو حضرت سیدہ کی خدمت کر رہی ہے۔ حضرت سیدہ نے اسماء بنت امیس سے فرمایا اسماء بنت امیس ایک بات عرض کرنی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے سیدہ حکم فرمائے، کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ جیسے سب کا جنازہ نکلتا ہے میرا نہ نکلے بلکہ پردے میں نکلے، کوئی ایسی تدبیر تمہیں معلوم ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے جب ہم حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ لوگ اس طرح سے عورتوں کا جنازہ لے کر کے جاتے تھے کہ اسے پالکی بنا دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے عورت کا جنازہ ہے کہ مرد کا جنازہ ہے۔ سیدہ کہتی ہے میرے لیے بھی پالکی بنا دینا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے پالکی بنایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ نے پہلے ہی غسل کر لیا تھا، ایک میں آتا ہے کہ اسماء بنت امیس نے غسل کیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں
शहजादों को तसल्ली देती है, सैयदा ज़ैनब को सब्र और शुक्र की तलकीन करती है। हजरत मौलाए कायनात की आंखों में आंसू है, हजरत आंखों में आंसू क्यों ना हो, ये वो सच खातून है जो खातून जन्नत है, ये वो बीवी है कि जिसने मौलाए कायनात के गुरबत में कदम कदम पर मौला अली का साथ दिया है। और यही तक नहीं बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा के अज़मत और शान पर हमारी नस्ल कुर्बान, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ ले गए थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिराक़ उम्मत में रो रहे थे। सहाबा ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए। नबी ने उठाने से इनकार कर दिया। फिराक़ उम्मत में मुस्तफ़ा रो रहे हैं, गमे उम्मत में मुस्तफ़ा रो रहे हैं। सैयदा को खबर मिलती है, हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत सैयदा फातिमा चादर ततहीर सर पर रखती है और पर्दा करके उस गार में पहुंच जाती है जहां अल्लाह के पैगंबर सजदा रेज़ थे। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, बाबा जान आप सर को सजदे से उठा ले। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फातिमा उस वक्त तक कैसे उठा लूं जब तक कि मेरी उम्मत को बख्श नहीं दिया जाता है। ये उम्मत है जिसकी मग़फ़िरत के लिए नबी गार में सजदा रेज़ है, जिसकी मग़फ़िरत के लिए नबी हर वक्त दुआएं कर रहे हैं। अब उम्मत सोचे जरा कि 24 घंटे में नबी पर दुरूद कितने बार पढ़ती है, 24 घंटे में नबी पर सलाम कितने बार पढ़ती है। ये उम्मत को सोचना है। नबी ने सर को उठाया नहीं जब सजदे से। हजरत सैयदा अर्ज़ करती है, बाबा अगर आपकी उम्मत के बख्शिश के लिए मैं चादर ततहीर को हटा दूं तो कैसा रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फातिमा फिर भी मैं सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। अल्लाहु अकबर। आज तक जिनके बाद एक बाल को किसी ने नहीं देखा है वो कहती है चादर ततहीर को हटा दूं। हजरत सैयदा रिवायत में आता है कि कहती है, बाबा अगर आपने सर को सजदे से नहीं उठाया तो मैं अपने सर के बाल छिला दूंगी और दुनिया उसका मुशाहिदा करेगी। हजरत जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके उम्मत के साथ वही मामला किया जाएगा जिसमें फातिमा राजी होगी, जिसमें फातिमा की रजा होगी। आप सर को सजदे से उठा ले। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रजा में खुदा की रजा है। उम्मत के लिए इस घर ने, इस खानदान ने जो कुर्बानी पेश किया है उस कुर्बानी का जवाब नहीं है। हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा के उम्मत के लिए हमेशा दुआएं करती थी। क्या वो दिन याद नहीं है आपको जब हजरत उस्मान गनी ने दावत किया था और कहा था कि नबी के एक कदम के बदले गुलाम आजाद करूंगा। हजरत मौला अली घर गए और कहते हैं, सैयदा उस्मान ने नबी की दावत किया है और नबी के एक कदम के बदले गुलाम आजाद करने की बात करते हैं, मैं क्या करूं, मैं गरीब आदमी हूँ। हजरत सैयदा कहती है, आप जाए और जाकर के नबी की दावत कर दे। हजरत सैयदना मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा जाते हैं और नबी की दावत कर देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने मुसल्ले को बिछा करके और रब की बारगाह में सजदा रेज़ है, अर्ज करती है, मौला उस्मान ने एक कदम के बदले में एक गुलाम आजाद किया है। परवरदिगार आलम फातिमा तुझसे मांगती है कि मेरे बाबा के हर कदम के बदले उम्मत के गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे, उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए, सरकार मुस्कुराए और इरशाद फरमाते, फातिमा जिब्रील ने मुझे अभी खबर दिया है कि अल्लाह ने तेरी दुआओं को कबूल कर लिया है और परवरदिगार आलम ने तुम्हें तेरे सदक़े में उम्मत की मग़फ़िरत कर दी है। और यही तक नहीं प्यारे, बल्कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिराक़ उम्मत में रोते थे, हजरत सैयदा ने अर्ज़ किया था, बाबा जान अगर मैं कल क़यामत के दिन अपने दोनों शहजादों के खून आलूद कपड़े को रब की बारगाह में पेश करके दुआ मांगूं तो क्या उम्मत की मग़फ़िरत नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। हजरत सैयदा कहती है, बाबा मैं अपने बेटों के खून का बदला रब की बारगाह में मांगूंगी। परवरदिगार आलम मेरे बेटों ने तेरे इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटाई थी, आज मुझे खून का बदला चाहिए। और जब रब फरमाएगा मांगो फातिमा क्या मांगती हो, तो मैं कहूंगी मौला मेरे बाबा के उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, मेरे बाबा के उम्मत
उम्मत की बख्शिश कर दे। ये अहले बैत रसूल है, ये अहले बैत मुस्तफ़ा है, ये आले अबा है कि जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, जो भी मांगते हैं वो उम्मत के लिए मांगते हैं। तो उम्मत का भी ये फर्ज बनता है कि आले अबा को हमेशा याद रखे और आले अबा की अज़मत व शान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने वैसे नहीं फरमाया था कि मेरी आल और कुरान ये दोनों तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। हज़रात गिरामी मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से नमाज को फर्ज किया है, इनकी मोहब्बत को भी फर्ज कर दिया है। एक मिसाल देकर के बात आगे अर्ज करता चलूं। हज़रात गिरामी मर्तबा नमाज जब आप पढ़ते हैं, नमाज में खड़े हो जाइए और पूरा कुरान पढ़ लीजिए और पूरा कुरान पढ़ने के बाद कायदे में बैठ जाइए और आप दुरूद शरीफ ना पढ़िए तो नमाज मुकम्मल होगी? नहीं मुकम्मल होगी, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। हाँ, अगर भूल करके नहीं पढ़ा तो सजदे सौ कर लिया, मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं पढ़ा तो ये होगा फतवा की नमाज नहीं होगी। हजरात सोचे आप जरा, सारी इबादत अदा करने के बाद सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने आले मोहम्मद को अपनी इबादत में शामिल रखा है। क्या लोगों, आले मोहम्मद का ये मकाम है कि जहाँ जहाँ खुदा को याद करोगे आले मोहम्मद का भी जिक्र करना पड़ेगा, आले मोहम्मद को भी याद करोगे। क़यामत तक उम्मत जब जब नमाज पढ़ेगी उस नमाज में आले मोहम्मद को याद करना ये जरूरी है, उस नमाज में आले अबा पर दुरूद भेजना ये जरूरी है। आले मोहम्मद का ये मकाम है कि अल्लाह ने सबसे अफजल तरीन इबादत में आले मोहम्मद को शामिल रखा है, आले अबा को शामिल रखा है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब विसाल होता है तो आप जानते हैं हज़रत फातिमा ज़हरा अर्ज़ करती है, मौला मेरे चेहरे को या मेरे बाल को आज तक किसी ने नहीं देखा है। मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करती हूँ परवरदिगार कि मेरी जान को इस्राइल ना निकाले, वो भी मेरे लिए गैर मर्द है। मौला मेरी रूह को तू ही निकाल ले। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और सैयदा फातिमा ज़हरा के रूह को अल्लाह ने अपने जो है दस्ते कुदरत से कब्ज फरमाया। अपने शायाने शान अल्लाह ने सैयदा के रूह को कब्ज किया और जन्नतुल बकी शरीफ में सैयदा तैयबा का जनाजा लेकर के पहुंचते हैं मौलाए कायनात हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हजरत सैयदा ने कहा था किसी को मेरे जनाजे की इत्तला मत देना, किसी को खबर मत करना। हजरत मौला अली है, हसनैन करीमैन है, हजरत फजल इब्न अब्बास है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये लोग पहुंचते हैं या हजरत अब्बास भी थे। उसमें पहुंचने के बाद हजरत मौलाए कायनात ने जनाजे की नमाज अदा फरमाई और हजरत सैयदा को सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। खाक के सुपुर्द उसको किया जाता है जो मलके जन्नत है, खाक के सुपुर्द उसको किया जाता है कि जो मलके जन्नत है, जो हुराने जन्नत की मलका है, जो बहिश्त की जीनत है, उसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के बारे में सैयदा ने कहा था हजरत अली से, क्या आप मेरे बाद दूसरी शादी कर सकते हैं, दूसरा निकाह कर सकते हैं, मगर मेरे बच्चों को खुदा के लिए मदीने के गलियों में यतीमों की तरह मत छोड़ देना, मेरे बच्चों को मदीने के गलियों में यतीमों की तरह घूमने के लिए मत छोड़ देना। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया नहीं सैयदा मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत गिरामी मर्तबा सोचे आप जरा, अभी उम्र छोटी है, 6 महीना पहले नाना मुस्तफ़ा करीम चले गए। वो नाना जो कभी कंधों पे बिठाते थे, जुल्फों को पकड़ाते थे, जो कभी कंधों पे बिठा करके और जुल्फों को पकड़ाते थे, जब सहाबी देखते तो कहते कि साहबजादे सवारी बहुत अच्छी है। तो नबी फरमाते सवारी तो अच्छी है ही है, सवार भी बहुत अच्छा है, इसलिए कि हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। हजरत गिरामी मर्तबा हजरत सैयदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सुपुर्दे खाक किया जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा ही के घर में ये दोनों फूल खिले थे। इमाम हसनैन करीमैन ये दोनों सैयदा ही के घर में खिले थे। और जब हजरत इमाम हसन की विलादत होती थी, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, जब इमाम
حسن پیدا ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے آپ کے بیٹی کے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبی تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں بندہ نواز آقا آپ کے ہوتے ہوئے علی کی مجال کے نام رکھ دے، علی کیسے نام رکھ سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین آ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کا نام پروردگار عالم رکھے گا، آپ کے شہزادے کا نام خدا رکھے گا۔ نبی فرماتے کیا نام؟ حضرت سیدنا جبریل فرماتے یا رسول اللہ اس کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پہ رکھ دیجئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شبر نبی رکھتے ہیں۔ سرکار جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ عربی میں اس کا معنی حسین ہوتا ہے، شبر یہ عبرانی زبان ہے، عبرانی زبان میں حضرت ہارون نے اپنے بچوں کا نام رکھا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ہوتی ہے حضرات گرامی، اور آپ کے 6 مہینے کے بعد امام حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ عرض کروں گا اس کے بعد ختم کروں گا۔ 6 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوتے ہیں اور فقہ میں شرعی مسئلہ امام حسین کے پیدائش سے حضرت امام اعظم نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر نکاح کے 6 مہینے کے بعد کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی کا بیٹا ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، عورت پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسن کے بعد 6 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین نے یہ بتا دیا دنیا والوں 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل فقہ نے امام حسین کے ولادت سے لیا ہے۔ ارے یہ وہ ہے کہ جو پیدا ہو تو مسائل کا استنباط کر دے، پیدا ہو تو فقہ کے مسائل کا حل فرما دے، یہ وہ ہے۔ حضرات گرامی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں ہوتی ہے اور فرشتے مبارکبادی پیش کرنے آتے ہیں۔ کل انشاءاللہ الرحمن حسنین کریمین کا بچپنا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد پرسوں حضرت امام علی مقام کا مکہ مدینہ سے روانہ ہو کر کے مکہ مکرمہ پہنچنا، اور پھر امام مسلم بن عقیل کی شہادت، اور سنیچر کو انشاءاللہ تعالی امام علی مقام علیہ جدی علیہ السلام کا کربلا پہنچنا اور ان کی شہادت تک، اور اتوار کے دن جو دن میں پروگرام ہوگا اس میں ماں بعد کربلا انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ اس سے لطیف ابینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔